Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So before I talk about the market today, I would like to talk about US debt ceiling limit. I wanted to cover this topic earlier as well, but I completely forgot about it in my last video, so my apologies. Now let's understand what is US debt ceiling limit. So US debt ceiling limit is the maximum amount that the US government can borrow to pay its bills. So bills as in, for example, they have employees to pay, the government employees, infra bills, education bills, welfare bills, etc., defense bills. There are a lot of bills, right? So हर government को ये bills pay करने होते हैं. एंड इन के लिए जो वो मैक्सिमम अमाउंट बोरो कर सकते हैं उसको यूएस डेट सीलिंग लिमिट बोलते हैं. सो दिस इज सिमिलर टू, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड एंड लेट्स से अगर मेरी 5 लाख की लिमिट है एंड मैंने अगर पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर दी है तो उसके ऊपर मैं इस कार्ड को स्वाइप नहीं कर पाऊंगी. सो दैट इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन माई क्रेडिट कार्ड. सो सेम वे द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ अ मैक्सिमम लिमिट. एंड as of January 2023, they have already exhausted 99.99% of that limit. And now, what happens in case the US government runs out of cash? In that scenario, interest payments में defaults होते हैं and downgrading होती है US की economy ratings की, right? And so what will happen with that? Now, इन केस अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं एंड यील्ड्स बढ़ते हैं तो दैट विल रिजल्ट इन बैंक्स टम्बलिंग डाउन. अभी रिसेंटली बैंक्स क्रैश हुए थे यूएस में. सो दैट कैन हैपन अगेन एंड वी नो दैट अगर कोई भी बैंक क्रैश होता है तो उसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है. इनफैक्ट इट डिड अफेक्ट आवर इंडियन इकोनॉमी, और सॉरी, आवर इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल्सो. Has this happened before as well? Yes, this has happened once in 2011 earlier. So एक बहुत बड़ी एजेंसी ने ये भी बोला है, मूडीज़ उसका नाम है. सो दे हैव ऑलरेडी सेड दैट अगर ये और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुआ तो यहाँ से इकोनॉमी में 4% का कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है एंड स्टॉक्स का प्राइस गिर सकता है बाय 1/5 ऑफ द कॉस्ट राइट नाउ एंड अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन जॉब्स कैन बी लॉस्ट. सो व्हाट विल हैपन विद दिस? दिस इज एंटरिंग इनटू रिसेशन, which we have already talked about earlier as well. And talking about the effect of this on the stock market, is our economy decoupled from the US market? The answer is no. So, a lot of big companies, especially the IT companies are dependent on the US market, they're dependent on the dollar price. So, अगर US का stocks गिरते हैं so उसका effect Indian market में ज़रूर आएगा, right? So, this is what is US debt ceiling crisis that's going on in the news nowadays, right? In case if you need any questions or any detailed information on it, please drop me a comment and I'll be more than happy to respond. So anyway, now let's talk about the market. So now talking about the global scenarios, of course, this is not a very good news. But if I talk about our Indian stock market, it looks very nice as of now also. In fact, आज बैंक निफ्टी ने वापस एक नया हाई लगाया है and Nifty is headed to its all-time high again. Right now, let's look at the market today. So आज निफ्टी ने हाई लगाया है 18,662.45. आइडियली अभी इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ने नहीं काटा है एंड बट देर इज़ अ गैप हियर विच वी डिड डिस्कस इन येस्टरडेज मार्केट. सो निफ्टी में हम बाइंग 14 दिसंबर की कैंडल के ऊपर करेंगे. 18,696.10 ब्रीच करते ही निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 18,728.60. R2 है 18,781.95 and R3 है 18,887.60. Any dip in the market right now is a buy. So any dip is a buy. And for a sell off, अगर हमारा आज का लो ब्रीच होता है 18,575.50, सो आइडियली निफ्टी में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा मूव ही नहीं आया. इनफैक्ट इट्स लेस देन 100 पॉइंट्स. सो एनीवे, सो अगर हमारा आज का लो ब्रीच होता है तो हमारा पहला सपोर्ट है 18,508.55 कल का हाई. देन सपोर्ट 2 है कल का लो 18,333.15 एंड सपोर्ट 3 इज 18,202.40. नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी. सो ऑफकोर्स बैंक निफ्टी ने आज एक नया 52 वीक हाई लगाया, ऑल टाइम हाई लगाया है एक्चुअली 44,498 एंड बैंक निफ्टी ने क्लोज भी डे हाई पर ही दिया है. सो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का 45,000 है. फॉर अ सेल ऑफ, अगर हमारा कल का लो ब्रीच होता है 44,193.95, सो हमारा पहला सपोर्ट आएगा परसों का हाई 44,067.60.
सपोर्ट 2 आएगा 43,588.80 एंड सपोर्ट 3 वुड बी 43,390.30. ये इस कैंडल का हाई सपोर्ट इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे गैप छूटा है, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक आकर एज एन इस गैप को फिलअप करके वापस ऊपर चली जाए. Now I'd like to talk about a few stocks. So REC is the first stock. As we can see, REC में आज एक नया 52 week high लगा है. So REC is on a breakout. Let's see the next levels for REC. So REC ने आज close दिया है 140.35 पर. So हम इसको CMP पर बाय कर सकते हैं एंड हमारे इसके टारगेट्स, लेट्स चेक द टारगेट्स. सो वील हैव टू गो बैक इन टाइम. ओके, सो हमारा इसका पहला टारगेट है 145.13. हमारा टारगेट 2 है 157.50 एंड हमारा थर्ड टारगेट REC में आएगा 161.93 एंड हमारा स्टॉप लॉस REC का रहेगा, आज का क्लोज आया है 140, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 137.80. The second stock I'd like to talk about is Persistent Systems. So Persistent Systems हमने अभी 2 दिन पहले भी दिया था एंड Persistent Systems ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था. सो Persistent is a buy on every dip. The sky it's in a blue sky territory. So Persistent को हम अभी भी CMP पर बाय कर सकते हैं 5072 पर. हमारा इसका पहला टारगेट है 5902. ये आइडियली हमारा Fibonacci 1.618 लेवल है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे. हमारा पहला टारगेट होगा इसका 5160 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है. देन 5300, 5500, 5700 एंड 5902. Coforge is also it also looks good. Coforge अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच करने वाला है, सॉरी 52 वीक हाई ब्रीच करने वाला है 4512. सो हम Coforge को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. CMP पर हम Coforge को बाय कर सकते हैं. हमारा इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 4507.15. एक्चुअली 4512 हमारे इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा. आफ्टर दैट विल बी 4605, then it will be 4873.85. Another stock I would like to talk about is Info Edge. Info Edge में हमने बात करी थी कि इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेक आउट आया था. सो हाउएवर Info Edge में उसके बाद करेक्शन देखने के लिए मिला है, बट Info Edge ने अभी भी ये अपने शोल्डर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. सो Info Edge इज़ ऑल्सो अ बाय ऑन एवरी डे. इसके टारगेट्स हमने ऑलरेडी पहले दिए हुए हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगी इन ब्रिंगिंग मच मोर वैल्यूबल कंटेंट टू यू. एंड इफ़ एट ऑल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू हैव एनी फीडबैक अबाउट द वीडियो, आई वुड प्लीज़ अर्ज यू टू मेंशन इट ऑन द कमेंट्स, बिकॉज इससे हमें पता चलेगा व्हाट वी आर डूइंग वेल एंड व्हाट वी आर नॉट डूइंग वेल. Right, so thank you so much for today and I wish you a great trading day tomorrow. Bye bye.